So first question, explain why some fibers are called synthetic. How? To summarize this, you are absolutely right. कि जो synthetic and they are made in the industries by the different chemical process, by linking of different small unit to form the main unit, that is large unit. दिखेगा सक्षम? हाँ एक्सप्लेन कर दो अगर 2 मार्क्स का आता है. Explain giving example to indicate nylon fiber is very strong. The appropriate answer, इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या बोला? He has given the main point. It is used in making parachute and climbing ropes. ठीक है, माउंटेन पे जब चढ़ते हैं. अगर इतना स्ट्रॉन्ग ना होता तो हम पैराशूट नहीं बना पाते. अगर इतना स्ट्रॉन्ग ना होता तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज नहीं कर पाते. बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है. नेक्स्ट, explain why plastic containers are favored for storing. I am not listening to you. This is the way you are giving the answers. Yes. इनको अगर पॉइंट में समराइज करना हो तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो. फर्स्ट, एज दे आर लाइट वेट, as they are non-reactive, as they are cheap, as they are more durable. टूटते नहीं है जल्दी. As they can be easily handled. So many points. सेफ नहीं कह सकते बेटे क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं. जब आप माइक्रोवेव में डालते हो ना तो फिर भी बेटे प्लास्टिक ही होते हैं. जो चीज केमिकल से बनी है ना वो सेफ हो ही नहीं सकती. जो चीज केमिकल से बनेगी ना और सिंथेटिक होगी, जो भगवान ने नेचुरली बनाया ना वही सेफ है. बाकी सबके डिसएडवांटेजेस हैं. वोल्केनो तो ह्यूमन वो कहते हैं कर्मास. वोल्केनो आर द कर्मास. चलो अब क्या क्या हम लिख सकते हैं? दे आर इजी टू हैंडल, दे आर चीप, दे आर मोर ड्यूरेबल, दे हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, non-reactive. So many things you can write. So approximately you have to write 6 points. Write down in your notebook. You must have 6 points. जो मर्जी लिखो अपनी तरफ से. हाँ, this next question we have already done. Explain the difference between thermoplastics and thermosetting. Just read them. वही लिखना.
they are cross-linked with each other. Thermoplastics can be soft on heating, but thermosetting plastics, they are usually get harder. Thermoplastics are less tough as compared to thermosetting plastics, whereas thermosetting plastics are more tough as compared to thermoplastics. Thermoplastics are more affected by high temperature, whereas thermosetting plastics, they are less affected by high temperature. Thermoplastics can be recycled easily, whereas thermosetting plastics can't be recycled easily. Examples of thermoplastics are polyethylene, etc., PVC, etc. Examples of thermosetting plastics are nano. Bakelite, melamine, so many. So these different point we have already done in the class. जिन्होंने लिखे हैं they know very well. You stand up from there. Come to this bench. Next question. Explain why the following are made up of thermosetting. Sauce pan handles. यही आंसर हाथ उठते हैं, बाकियों के नहीं आता. Wait, stand up. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हम सॉस पैन के हैंडल क्यों बनाते हैं? कौन से प्लास्टिक से बने होते हैं सेटिंग से? We have done in the class. भी उसने सारी प्रॉपर्टीज बता दी सेटिंग की, उसी प्रॉपर्टी में से आंसर है. क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन क्या पूछा बेटे? दोबारा रिपीट करूं. सॉस पैन हैंडल्स जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग्स की क्यों बने होते हैं? What are the properties of thermosettings? अभी रिदम ने इतनी अच्छी से डिफरेंस बताया आपको. What are the properties? मुझे लगा आपको बहुत आता है, आपको सुनने की जरूरत ही नहीं किसी को. नहीं ना? I thought that. Last stand up. Don't you have NCERT book? बुक दो इसको. बुक में क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट. I know you know. Yes. Soft, get softened by heat, and they are poor conductor of heat. Now you will not write here electricity. पॉलिसी होगी उधर, सॉस पैन में थोड़ी ना. अब you tell me why electric plug switches and plug boards are made up of thermosetting. सेम यही आंसर है. बुक तो भी कुछ दिखाओ महाराजा को. फिर कौन सा नहीं है तो क्या यूज करते हैं हम? स्विचेस में कौन सा थर्मोसेटिंग है? बेटे इनको मैं अलग तो नहीं पढ़ाती आके क्लास में कि मैं अलग से ट्यूशन देती हूँ इनको जिनको आते हैं.
तभी आ रहे होते हैं। आप कोई वो 6th 7th में तो पढ़ते नहीं हो, आप इसी क्लास में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते सारे? इनको कोई क्या आता होता है, क्योंकि दे आर ओबीडिएंट, दे गो एंड रीड डेली, दैट्स इट, एंड दे लिसन टू द टीचर। वो दे तेरे लेक्चर में ये होता है, ऐसे करने हैं। आई टेल टू योर मदर, इसको पेन बंद करा दो, पेंसिल ही दिया करो। यस इलेक्ट्रिसिटी नॉवेल्स है। हाँ ये भी दे सकते। they are not getting soften up and they will not melt at high temperature। बहुत ज्यादा हाई होगा तभी मेल्ट करेंगे। बैकलाइट, मेलामाइन आपके डिनर सेट्स होते हैं। नेक्स्ट, सिट डाउन। अब नेक्स्ट सुन लो क्वेश्चन। पॉलीस्टाइरीन, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH। चलो विल डू इन हायर स्टैंडर्ड्स। कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स into can be recycled and not be recycled। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट रिसाइकिल हो सकते हैं। प्लास्टिक टॉयज, यस, वो पॉलीथीन के बने होते हैं। दे कैन बी, तभी तो रद्दी वाला लेके जाता है। कुकर हैंडल्स, कैरी बैग, बॉल पॉइंट पेन्स। प्लास्टिक का ही होता है, प्लास्टिक ही तो होता है, वो भी प्लास्टिक होता है वो। अलग अलग पॉइंट नहीं बेटे, बाकी जो मटेरियल है उसका। पेन्स भी प्लास्टिक है, पेन भी प्लास्टिक। बॉल पॉइंट पेन, ये रे, ये बॉल पॉइंट पेन है। तो ये क्या हम रिसाइकिल नहीं कर सकते? प्लास्टिक बाउल, वाई नो, प्लास्टिक के होते हैं। मेलामाइन नहीं बोला। बेटे अगर उन्होंने ये बोला होगा मेलामाइन बाउल्स, तब द नो लिखते। प्लास्टिक के भी तो होते ही हैं, ये जो माइक्रोवेव दूसरे होते हैं प्लास्टिक की तो होते हैं। नहीं प्लास्टिक के लिए यस बेटी, वो भी प्लास्टिक बाउल्स हैं, वो BH से फ्री होते हैं। बेटे जब आप उसको हीट करोगे तब मेल्ट होंगे, आग फायर लेके जाओगे ना। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर, प्लास्टिक चेयर्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस। Rana wants to buy shirt for summer. Should he buy a cotton shirt or shirt made up of synthetic fiber? Again, I will not ask now. Advise Rana. Rana को advise करो section. Stand up. क्या advice दोगे राना को कि वो कौन सी शर्ट ले, कॉटन की कि सिंथेटिक? क्यों? समर्स में वो कॉटन की लेगी उसको। क्यों लेंगे बेटे? क्यों एडवाइस करी आपने ये बात?
आपने करी है ना? फिर मैं आपसे पूछती हूँ, आई एम राना, आई एम आस्किंग यू, क्या मुझे क्यों कह रही हो कि कॉटन की डालो? मैं तो सिंथेटिक भी डाल सकती हूँ। क्यों गाया आपने ऐसा? आपको कॉटन में ऐसी क्या खासियत लगी है? क्योंकि वो कॉटन का क्लोथ है। फिर कॉटन का क्लॉथ क्या करता है? समर में क्लॉथ कॉटन का क्लॉथ है। क्यों होता है बेटे? यही तो मैं पूछ रही थी, क्यों, वाई? अब आप यहाँ पे अगर स्कूल में सिंथेटिक कपड़े डाल के आ जाओ, फ्रिल फ्रिल वाले, क्यों, क्या लगती है आपको? भी गर्मी लगती है? हाँ बोलो, क्या करता है? स्वेट लगेगा। स्वेट आएगा। जब कॉटन डालोगे तो स्वेट को क्या होगा? समर में स्वेट नहीं आएगा। नहीं आएगा। मैं टी शर्ट में। क्यों नहीं आएगा? हाँ जी जगजोत, स्टैंड अप। वो कॉटन की डालेगा, सिट डाउन। क्यों? क्या कॉटन में क्या खासियत है? बेटे पीवीसी है बेटे। हाँ ये तो है ही थर्मोप्लास्टिक्स। अब बॉडी पे वाटर तो है नहीं, क्या अब्सॉर्ब करेगा? आपकी बॉडी क्या लूज करती है? गर्मियों में क्या आता है? बोल रहे हैं स्वेट। तो in the summer season cotton cloth will absorb the sweat and they have small pores. From that pores the sweat will evaporate and cause cooling to your body. But in case of synthetic fiber, they will not absorb the sweat, it will not evaporate. Next, sit down. हीट को रिफ्लेक्ट, स्टैंड अप। हीट को रिफ्लेक्ट क्यों करेगी? आप गर्मी में जाते हो, आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती हीट। मैं कह रही हूँ आपने कॉटन क्लॉथ डाला है, क्या वो वापस चली जाती हीट लग के? बेटे जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो स्वेट को इवेपोरेट करने में मदद करते हैं। अगर आपने लाइट कलर के क्लोथ डालेंगे वो आपको कूलिंग इफेक्ट देंगे। अगर आप कॉटन की डार्क कलर की डालोगे तब भी गर्मी लगनी है। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन corrosive इन नेचर। यस ओमिन, जिसको रस्ट नहीं लगती। नॉन corrosive का मतलब जिनको करोजन नहीं होती। करोजन का मतलब होता है that is deterioration of any metal, that is degradation of any metal, like सिल्वर के अराउंड ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, कॉपर के अराउंड ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, आयरन को क्या लगती है? रस्ट। आयरन के लिए हम रस्ट यूज करते हैं, मगर बाकी सब मेटल्स के लिए हम क्रोजन यूज करते हैं। मतलब सबके लिए अगर ब्रॉडर टर्म है तो दैट इज क्रोजन। अगर नॉन क्रोसिव नेचर बोला है तो इनका मतलब इनको क्रोजन नहीं होती है, खराब नहीं होते। यस ठीक, यू आर वेरी मच राइट। दे आर नॉट गेट करोडेड अंडर वाटर ऑक्सीजन, बट विद एग्जाम्पल वी कैन एक्सप्लेन बेटे। लाइक पीवीसी पाइप्स ने करी है ना, उसमें से किया जाता है वाटर, की करोजन नहीं होती। बिल्कुल सोमिल ने ठीक बोला है। ये बोल के फिर आपने एग्जांपल देनी है पीवीसी पाइप्स की। मेटल टैंक्स आजकल देखो घर पे टंकी लगी है, या तो प्लास्टिक की होती है या ब्रिक्स की बनी होती है। आपने मेटल की कभी देखी है?
क्यों? क्योंकि वो करोजन हो जाएगी। तो आप इनकी भी एग्जांपल दे सकते हो। वाटर टैंक्स, पाइप्स, सैनिटरी फिटिंग्स सब पीवीसी की हैं। दे आर नॉन करो। बेटे प्लास्टिक वो एक तरह का प्लास्टिक है, पीवीसी। प्लास्टिक एक तरह का नहीं है। प्लास्टिक में बहुत सारे प्लास्टिक आ जाते हैं।